Very good morning, children. Today I am going to continue next video from chapter 13. It is making our own magnet. इससे previous videos में बच्चों हमने बात की थी about the attraction and the repulsion of magnet. तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम अपना own magnet बना सकते हैं. There are many ways of making magnets. The easiest way of making magnet is by stroking method. If we stroke an iron bar with one end of a bar magnet repeatedly in the same direction, the iron bar becomes a magnet. यानी कि किसी भी वस्तु को, किसी आयरन की चीज़ को अगर हम मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका है स्ट्रोकिंग, यानी उस पर वार करने से. अगर हम एक बार मैग्नेट लेकर एक आयरन के ऊपर लगातार रिपीटेड एक ही डायरेक्शन में अगर हम स्ट्रोक करते रहेंगे, मारते रहेंगे उस पर, तो इट विल बिकम अ बार magnet. We need two things make a magnet: an iron bar and a bar magnet. Method of making magnet is described below. How we can make a magnet: take a iron bar which is to be made a magnet and keep on a wooden table, and also keep a bar magnet and hold one end of the bar magnet in your hand and keep the another end of the bar magnet at one end of the iron bar. Without slitting, move the lower end of the bar magnet along with whole length of the bar till you reach the other. You can see in the figure. बच्चों फिगर में आप क्लियरली समझ जाओगे. एक हमने आयरन बार ले लिया और एक हमने बार मैग्नेट लिया. उसको क्या करेंगे, हम इसी पे स्ट्रोक करते रहेंगे यानी सेम डायरेक्शन में. आफ्टर सम टाइम्स इट विल बिकम अ magnet, and repeat this process of stroking the iron bar with the same end of the bar magnet in the same direction about 30 to 40 times. Afterwards it's become a magnet. The iron bar will become a magnet. We can check whether the iron bar has become a magnet or not by bringing near iron flings. यानी कि अब उस आयरन के टुकड़े को लेकर हम उसके आसपास आयरन के बुरादे अगर हम डालते हैं तो वो मैग्नेट अगर बन गया है तो वो क्या होंगे, आयरन के बुरादे उसमें जाकर चिपक जाएंगे. इफ़ नॉट देन शुड वी कंटिन्यू द प्रोसेस. तो अब हम देखेंगे कि अगर वो नहीं चिपक रहे हैं तो दोबारा से हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू करते करते कंटिन्यूसली अगर हम उस पर स्ट्रोक करते रहे तो आफ्टर सम टाइम्स इट बिकम अ मैग्नेट. ओके चिल्ड्रन, देन नेक्स्ट. Please note that the magnet pole produced in iron bar at the end where the stroke end is always opposite of the stroking pole of the bar magnet. For example, figure the stroking pole of a bar magnet at the end of a stroken at a end B of iron bar is north pole. So the B of iron bar will become an opposite pole, which will be yes pole. Thus, when the iron bar AB becomes a magnet, then it is end A will become a north and B will become a south pole. We can turn any iron object into magnet by stroking method described above. For example, we can even convert an iron nail, also a sewing needle or even a razor blade into a magnet by stroking them repeatedly in the same end of a bar magnet. यानी कि बच्चों हम किसी भी चीज़ को आयरन के बनी हुई किसी भी चीज़ को हम मैग्नेट बना सकते हैं बाय स्ट्रोकिंग with the same end of the bar magnet in the same direction. And if we convert an iron needle to magnet, then we can use the magneticized needle for making your own compass. अब इसकी सहायता से हम अपना own compass भी बना सकते हैं. We take an iron needle and turn into a magnet by using a bar magnet. This iron needle which has become a magnet is known as magnetized needle, and insert the magnetized iron needle through a small crock in such a way the some part of the visible and on both sides of a crock. यानी कि अगर हम कंपास बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम एक टम्बलर ले लेते हैं, उसमें हमने वाटर उसके अंदर क्रॉक डाल दिया और उसमें हमने सुई को छेद कर बाहर निकाल दिया. कुछ पार्ट बाहर है, कुछ पार्ट आगे है. यू कैन सी इन द फिगर.
Now take some water in a plastic container and float the cork in the needle should remain above the water level. It should touch the water in the container and the magnetized iron needle fixed the cork floating on the water has become a compass. The magnetized iron needle will align itself in the north or south direction. अब ये जो पानी में जो तैर रहा है क्रॉक, इसमें जो सुई लगी हुई है, ये अपने आप को नॉर्थ या साउथ के डायरेक्शन में शो करेगा। इस प्रकार से हम अपना खुद का कंपास भी बना सकते हैं। Okay children, the next, magnet can also be made by using electricity also. The magnet made by using electricity are called electromagnets. यानी मैग्नेट बनाने के और भी तरीके हैं। We can make a magnet with the help of electricity, और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा बनाए गए मैग्नेट्स को कहते हैं electromagnets. Are very useful because their magnetism can be switched on and switched off. यानी कि ये काफ़ी हमारे लिए यूज़फुल होते हैं क्योंकि इसको हम आसानी से जब चाहे ऑन कर सकते हैं और जब चाहे ऑफ कर सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, इफ़ द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच ऑन थ्रू द इट्स कॉइल, द इलेक्ट्रिक मैग्नेट गेट्स magnetism. On the other hand, when the electric current through a coil switched off, the electromagnet loses all its magnetism and no longer behaves like a magnet. We will study about electromagnets in detail in higher classes. यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो बनाए गए मैग्नेट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, और उनके अंदर जब तक लाइट हम प्रवाहित करते हैं तब तक वो मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं बच्चों, और अदरवाइज उसके अंदर कोई मैग्नेटिज्म नहीं होता है। ओके चिल्ड्रन, देन नेक्स्ट, प्रिकॉशन इन हैंडलिंग मैग्नेट्स। यानी कि मैग्नेट्स को हम सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हमें करने चाहिए। द मैग्नेट लूजेज देयर प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म इफ दे आर हीटेड स्ट्रांगली, हिट विथ हैमर, ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। यानी कि जो मैग्नेट्स है वो अपने मैग्नेट प्रॉपर्टी को खो भी सकते हैं, बिकॉज अगर हम उन्हें बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो उनके अंदर जो मैग्नेटिक तत्व है वो ख़त्म हो जाती है। अगर फिर हैमर से हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रोक करते हैं तो भी उसके अंदर का मैग्नेट ख़त्म हो जाता है, या फिर मैग्नेट को काफ़ी ऊंचाई से अगर हम गिरा देते हैं तो भी उनके अंदर का जो मैग्नेट प्रॉपर्टी है दैट डिस्ट्रॉयड्स इट, नो लॉन्गर रिमेन्स अ मैग्नेट। इट इज़ अ कॉमन observation that the science teachers get annoyed when students drop a magnet on the floor. This is because, इसीलिए टीचर जो है मैग्नेट एक्सपेरिमेंट करते समय अगर मैग्नेट को हाथ से गिर जाता है तो टीचर बच्चों को डांटती है कि प्लीज़ डोंट ड्रॉप द मैग्नेट फ्रॉम अ हाइट फ्लोर एंड कैन क्योंकि वो क्या कर सकता है, इट कैन डिस्ट्रॉय द मैग्नेटिज्म ऑफ मैग्नेट्स टोटली और पार्शियली। यानी कि वो पूरी तरह से अपना मैग्नेटिज्म खो देते हैं या फिर हाफ मैग्नेटिज्म भी खो देते हैं। नेक्स्ट, मेक देम यूजलेस। ऑल ऑफ शुड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस वाइल हैंडलिंग द मैग्नेट सो दैट दे डू नॉट डैमेज एंड रिमेन देयर मैग्नेट फॉर सच मच मोर लॉन्गर पीरियड। तो जब भी हम मैग्नेट का यूज़ करते हैं तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होगा ताकि उनके अंदर का जो मैग्नेट तत्व है, प्रॉपर्टी है, वो सुरक्षित रहे काफ़ी लंबे समय के लिए। वी शुड नेवर हीट द मैग्नेट ओवर अ बर्नर। कभी भी हमें मैग्नेट को गर्म नहीं करना चाहिए बर्नर के ऊपर। वी शुड नेवर हीट ए मैग्नेट। कभी भी हैमर या हथौड़ी से, भारी चीज़ से उस पर हिट नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर ड्रॉप ए मैग्नेट ऑन द फ्लोर। और कभी भी हमें ऊंचाई से मैग्नेट को गिराना, ज़मीन पे गिराना नहीं चाहिए। एंड वी शुड स्टोर द मैग्नेट प्रॉपरली when not in use। और जब भी मैग्नेट यूज़ में ना हो तो उसे प्रॉपर तरीके से हमें स्टोर करना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। यू हैव अंडरस्टूड कि मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज़ है हम उसको किस प्रकार से हमें हैंडल करना चाहिए। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट हाउ टू स्टोर अ मैग्नेट प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स।